Welcome everyone. Today we are going to discuss about the next part, that is the erythrocytes, RBC, red blood corpuscles. These are the objectives we will discuss today. And you can see this is the composition of blood, what we have discussed in the last class. We have seen the plasma proteins and the functions of plasma proteins, and then we have discussed about the formed elements. That means those who are having different form we can see with the help of microscope. In that, most important formed element was the red blood corpuscles or RBCs. You can see, and then there was WBCs and platelets. We will discuss in later. And this is once we will see with the help of microscope the A picture you can see. Then this is the with the help of microscope you can see the right tiny spots. This is called eosine color. So you will identify this numerous number of RBCs are there in the uh, microscopic view, and below you can see the diagrammatic representation of RBCs. And then this side D picture is showing that how this RBCs look like when we are cutting it. And then you can see the this biconcave shape also in that. And then nucleus of endothelial cells के साथ साथ the blood is flowing and the RBCs can be seen flowing in the blood vessels. So this is a common picture we are getting in the RBCs की. RBCs एक kind of cell है ना, और शायद स्फेरिकल होती होगी, शायद जैसे और सेल्स होती हैं वैसी होती होगी, लेकिन आरबीसी में बहुत कुछ चेंजेस होता है, बहुत सारा उसमें मॉडिफिकेशन होता है. प्रिमिटिव सेल जो होती है दैट इज़ उसमें न्यूक्लियस भी रहेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, उसमें वॉट एवर द नॉर्मल सेल इज हैविंग ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द आरबीसीज. बट एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस, maturation comes, then the RBC will be coming to its normal shape and structure, and some organoids will be removed. That we will see in the when we will discuss about the hemopoiesis chapter. This is the formed elements shown in a picture. In that RBCs can be seen. The WBCs especially has been marked. We will see later. And this was the summary of the formed elements कि उसमें उनका डिस्क्रिप्शन, स्मॉल डिस्क्रिप्शन था कि दिस आरबीसीज आर बाइकॉन्केव, ए न्यूक्लिएट एंड 4.6 मिलियंस. ये दिस विल डिस्कस अबाउट, एंड दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द formed elements you can see. So what are erythrocytes? RBCs होती क्या है? Erythrocytes, red blood cells, are anucleate, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड है ना, न्यूक्लियस नहीं है पहली बात. बाइकॉन्केव सेल्स filled with hemoglobin which makes them red, that transports oxygen and carbon dioxide between the lungs and tissues. बात यहाँ पे लग रही है कि न्यूक्लियस नहीं है, बाइकॉन्केव है. तो आरबीसीज का जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है, जैसे बोलते नहीं कि कस्टमाइज सेल है. वी विल डिस्कस कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया, वाई इट हैज़ बीन बिकम बाइकॉन्केव, वाई दिस इज हैविंग नो न्यूक्लियस, वाई दिस इज नॉट हैविंग द माइटोकॉन्ड्रिया. कुछ सोच के इसमें से सब हटाया गया है कि धीरे धीरे कैसे कैसे इसको बनाना है, क्योंकि इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करे, सामान ले जाए, है ना. एंड वाइल ट्रांसपोर्टिंग देयर इज अ नीड ऑफ मच स्पेस, तो दैट स्पेस इज द सेल्स मोस्ट स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्पेस घेरता है तो ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर पाएगा उतना आरबीसी, इसीलिए वहाँ से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है ना. न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट सेल, देन दिस बिकम्स बाइकॉन्केव. वहाँ से न्यूक्लियस निकलते ही वो थोड़ा सा पिंचिंग हो गया एंड देन बिकम्स बाइकॉन्केव. वी विल डिस्कस. दे आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो बाई ए प्रोसेस कॉल्ड इराइथ्रोपोइसिस. पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या बनाना, कोई भी चीज़ बनती, जैसे इराइथ्रोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस, ठीक है. तो दिस इज formation of erythropoiesis, and during this process stem cell derived erythrocyte precursors undergo a series of morphological changes to become mature erythrocytes. This we'll discuss in the next chapters. Those mature RBCs are released into the bloodstream where they survive between 100 to 120 days. अब देखिए यहाँ पे भी एक बात ये देखने आ रही है कि यहाँ पे इनका एक लाइफ स्पैन फिक्स हो गया. क्यों?
क्योंकि इनके पास अब न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास राइबोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना. सो दे कैन नॉट गो फॉर द नॉर्मल रिपेयर, जैसे अदर सेल्स होती हैं जो कि रिपेयर कर सकती हैं, दे कैन नॉट गो. तो इसलिए इनका एक लाइफ स्पैन फिक्स हो गया कि अप टू दैट लिमिट दे विल they will survive. Anucleate means no nucleus and then no centrioles, यानी उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे काम करता है, जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, एंड सेल्स कैन गो फॉर डिवीजन, वो नहीं हो रहा है. नो ऑर्गेनेलीज, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज वहाँ से हटा दिए जाते हैं. धीरे धीरे जानेंगे हम लोग क्या क्या होता है. एंड रिजल्ट का क्या होता है, देर इज नो सेल डिवीजन, सेल कैन नॉट डिवाइड इटसेल्फ, मतलब आरबीसी एक से दूसरी दूसरी से तीसरी नहीं बन पाती है. जैसे जब वो मैच्योर हो जाती है तब. नो न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा स्पेस इनसाइड, दैट्स आई हैव टोल्ड यू कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एनी सेल इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस. और आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन और सारा डालना है ताकि वो ऑक्सीजन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरीड. सो दैट्स वाई वहाँ से न्यूक्लियस ही हटा दिया जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा था. यानी अब उस जो ट्रक, जो हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रक है, उसमें से हमने मैक्सिमम स्पेस खाली कर लिया है टू कैरी द ऑक्सीजन. नो माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स दे जनरेट एटीपी एनोरिबिकली. Every cell has to for their normal wear and tear, for electrolyte transport they need some channels. उन चैनल्स को रेगुलेट करने के लिए दे नीड एनर्जी. एनर्जी आती है एटीपी से. अब एटीपी तो चाहिए लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो क्या होता है, दे जनरेट द एटीपी एनारोबिकली, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि बाकी सेल्स में होता है. दिस प्रिवेंट्स द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड. कितनी खासियत से देखिए बनाया गया है इसको कि अगर ये ऑक्सीजन ले जा रही है तो ऑक्सीजन ले जाएगी, तो इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया विल यूज दैट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यूज कर लेगा. तो वो ऑक्सीजन यूज ना हो पाए इसके लिए क्या हुआ, वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया ही हटा दिया गया. सी, न्यूक्लियस हटा दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया गया. मतलब जो तुम ले जा रहे हो, व्हाट द थिंग्स यू आर कैरिंग, यू शुड नॉट कंज्यूम दैट थिंग्स and that should be maximum transported to the needed tissues. That's why mitochondria also being removed. Whatever energy requirement is there, that will be supplied with the help of anaerobic processes. Neither use oxygen for extraction of energy nor synthesizes proteins. अब इसके पास जो राइबोसोम है, जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं, तो वो भी नहीं बना सकते हैं. क्यों, क्योंकि अब इसके पास मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन रहना चाहिए. देन क्या होता है कि इसीलिए इसका जो वेन एवर इट इज़ गोइंग फ्रॉम द वेसल्स, इट पासेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द हार्ट एंड अगेन टू कमिंग पूरा सर्कुलेशन में, इट गोज फॉर अ वियर एंड टीयर. इसीलिए बेचारी टूट फूट जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है. एंड देन द आर ई सेल विल डिटेक्ट द एबनॉर्मल आरबीसीज एंड दे विल फिनिश दैट. तो इसीलिए 100 to 120 डेज में इसका वियर एंड टीयर एंड द लाइफ स्पैन हो जाता है, खत्म. इट कैन कंटेन मोर हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल. दैट वाज द रीजन. अब इसमें देखते हैं कि इसकी खासियत ऐसा, इसको बाइकॉन्केव जो हुआ, इससे हमें क्या क्या इसमें खासियत से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है ना. शेप्स प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, सो मोर ऑक्सीजन कैन बी कैरीड. फोल्डिंग इंक्रीजेज सरफेस एरिया. तो जो इसका एक बाइकॉन्केव शेप हुआ, उससे क्या हुआ, ज़्यादा सरफेस एरिया मिला. इससे क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन बहुत फास्ट और कैरिंग ज़्यादा होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स स्पेक्ट्रिन गिव इरेथ्रोसाइट्स देयर फ्लेक्सिबिलिटी. अभी बताएंगे कि कौन कौन सा प्रोटीन होता है, दैट इज ओनली द. तो इसमें क्या हुआ, जब ये बाइकॉन्केव शेप हुआ, इसमें आप देखेंगे साइड वाला फिगर जो है, बाइकॉन्केव में इसको साइड से काट के देखा गया है. एक्चुअली ऐसा देखने में होती नहीं है. जब किसी इस सर्कुलर शेल को जब हम लोग काट के ऐसे देखते हैं तो देखने में ये ऐसे लगती है. सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी ये जो क्विक गैप्स ड्यू टू लेस सेंटर टू पेरिफेरी डिस्टेंस. ठीक है, अब जब ये चीज़ राउंड था, अब उसको हमने ऐसे फ्लैट कर दिया, तो सेंटर टू पेरिफेरी डिस्टेंस होता है दैट इज रिड्यूस्ड. इससे क्या हुआ, फास्ट ट्रांसपोर्ट होने लगा. हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दैट इज comparatively more surface area for gas exchange than in a spherical cell for the same volume. More flexibility with an ability to pass through narrow capillaries.
एबिलिटी टू विदस्टैंड सम ऑस्मोटिक चेंजेस। फिर से देखते हैं। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, इसमें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कैन से, हम लोग जब भी देखते हैं घर में वी आर मेकिंग द चपातीस, है ना, वी आर मेकिंग चपाती, वी आर टेकिंग द फ्लोर एंड वी आर जस्ट मिक्सिंग दैट, आटा गूंथते हैं, उसको बनाते हैं और उसमें फिर ऐसे लोई बनाते हैं। तो जो गोल गोल लोई बनती है उसको ध्यान से देखिए, दैट इज़ द स्फेरिकल। ठीक है, जब उस गोल गोल लोई को हम लोग जब ऐसे फ्लैट करके उसको जब हम लोग चपाती का रूप दे देते हैं, तो ध्यान रखिए वॉल्यूम सेम था, वॉल्यूम वॉज द सेम, सर्कुलर शेप में थी, देन वी हैव मेड इट फ्लैट शेप। तो इसमें फ़ायदा क्या मिला कि वेंस वी आर पुटिंग ऑन द तवा, देन हीट ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। अगर उसी गोल को रख देते, स्फेरिकल आटे की लोई को ऐसे हम रख देते तवे पे, तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज सेंटर टू पेरीफेरी डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जब हमने उसको फ्लैट कर दिया, चपाती बना दिया, तब उसको तवे पे रखा, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट, जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, एंड देन फास्ट गैस एक्सचेंज हुआ, उससे रोटी जल्दी बनी और जल्दी फूल गई। तो दिस सी द डिफरेंस ऑफ दिस बाई कॉनकेव शेप, जहाँ से उसको स्फेरिकल से बाई कॉनकेव कर दिया गया, ध्यान रखिए। ठीक है, एंड देन मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद एन एबिलिटी टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज। उस बाई कॉनकेव शेप से क्या हुआ, ये जो इस तरह साइड से देखेंगे तो ऐसे जब वो जो कैपिलरी में वेसल्स में मूव करती है, तो इससे जब यहाँ पे जो उसको बेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो वो बेंड होके ऐसे ऐसे बेंड होके निकल के और फिर खुल के बाहर कैपिलरी से पास हो जाती है। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ दैट। अगर वो सर्कुलर होता तो क्या होता, वेसल्स में जाके ऐसे फंस जाता। ठीक है, फंस जाता तो और उसको निकलने में प्रॉब्लम होता, ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं होता एंड ब्लॉकेज ज़्यादा होता। बट बाई कॉनकेव था, तो बाई कॉनकेव ने क्या किया, ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। ठीक है, ऐसे मुड़ के जब ऐसे करके पास हो गया, तो सर्कुलर एंड बाई कॉनकेव। तो इससे जो फ़ायदा हुआ वो थोड़ी सी बेंड होके, सपोज ये नैरो है, तो ये जो है सर्कुलर से बेंड होके इट इज़ ईजिली पासिंग थ्रू द कैपिलरीज, ये बेनिफिट मिलता है, एंड इट गिव्स द मोर फ्लेक्सिबिलिटी। देन अच्छा, उसके बाद होता है कि दिस बाइकॉनकेव शेप इट्स गिविंग द एबिलिटी टू विदस्टैंड सम ऑस्मोटिक चेंजेस। सम ऑस्मोटिक चेंजेस मतलब कि एज वी आर कंपेयरिंग विद द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल जो होती है वो ऑलरेडी पूरी तरह से गोल फूली हुई रहती है। ठीक है, अगर उसमें उसको हम लोग अगर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, तो वी नो द देयर इज अ नेचर ऑफ एवरीथिंग कि दिस नेचर वांट्स टू मेक अ इक्विलिब्रियम, है ना। तो क्या होगा, जो अगर सर्कुलर सेल है तो उसमें अगर सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है अगर बाहर वाले सॉल्यूशन से उतना बराबर नहीं होता है। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, वो सेल जो है उसमें से कंसंट्रेशन जो है वो निकल जाता है। ठीक है, और अगर हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, अगर बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, जो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, वो श्रिंक कर जाती है। अगर हाइपोटोनिक है तो स्वेल कर जाती है। इसीलिए जल्दी जो स्फेरिकल सेल है वो जल्दी रप्चर हो जाएगी। बट बाइकॉनकेव सेल क्या होगी, सपोज उसमें देखिए राइट साइड वाले में ए और बी जो बना हुआ है फिगर, उसमें ए में क्या होगा, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा देखेंगे हल्का सा उसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग का पॉसिबिलिटीज रहता है एज कंपेयर टू द स्फेरिकल सेल्स, है ना। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द बाइकॉनकेव शेप। देखिए कितना मतलब सोच के बनाया गया है आरबीसी को, कि मतलब कि बाइकॉनकेव शेप दे दिया, उसमें प्रोटीन ऐसे एडजस्ट किए गए कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, टूटे नहीं। आप बहुत कुछ मतलब देखेंगे तो मतलब मज़ा आ जाएगा। And then erythrocytes, the RBCs filled with hemoglobin, that is 90% of cell content. Each RBC contains 280 million hemoglobin. देखिए कितना फ़ायदा मिला, 280 million number of hemoglobin it can carry. And hemoglobin function in gas transport everybody knows. अच्छा, most numerous of the formed elements of blood RBC is there. Females में अगर हम देखेंगे तो this is 4.3 to 5.2 million cells per cubic millimeter. एंड मेल्स में 5.2 मिलियंस टू 5.8 मिलियंस सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर को हम लोग माइक्रोलीटर भी बोलते हैं, तो इट कैन बी माइक्रोलीटर और क्यूबिक मिलीमीटर। डायमीटर्स लार्ज देन द सम कैपिलरीज।
कुछ कुछ कैपिलरीज जो होती हैं उनसे डायमीटर इसका ज़्यादा रहता है, लेकिन ये फंसती नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बाइकॉनकेव शेप, वो आराम से निकल जाती है। एंड देन मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू प्लस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी लास्ट लेक्चर में मैं बताया था कि जितना नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी तो विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है ना। तो ये नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो थिकनेस है, जो चिपचिपापन है ब्लड का, वो विस्कोसिटी को इसको मेंटेन रखती है। सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सुपर्ब एग्जाम्पल है इसका, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन सब देखेंगे तो इसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। देन वी कैन सी द मॉर्फोलॉजी। डायमीटर ऑफ रेड सेल इज अबाउट 7.2 माइक्रॉन, एवरेज है, इट मे बी 5.5 to 8.5, and then thickness 2.2 micron at the periphery, while in center it is 1 micron. When the diameter of red cells of an individual are plotted against their numbers, the resulting curves is called price zones curves. ठीक है, अगर हम डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स को हम प्लॉटिंग करें तो देखेंगे, आप रेड वाला देखेंगे बीच में जो कर्व आया है, ठीक है, इसमें देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे जो रेड वाला कर्व है वो दैट इज शोइंग द मैक्सिमम 7.2 माइक्रॉन डायमीटर, है ना। 7.2 माइक्रॉन डायमीटर जो दिखा रहा है रेड वाला, दैट इज द नॉर्मोसाइट, नॉर्मल सेल्स है। और अगर ब्लू वाला देखेंगे दैट इज द मैक्रोसाइट्स, यानी साइज बढ़ गया है थोड़ा सा। एंड जो येलो वाला पार्ट है दैट इज हैविंग शोइंग द दिस इज माइक्रोसाइट, ठीक है। माइक्रो मीन्स छोटी, मैक्रो मीन्स बड़ी, नॉर्मो मीन्स नॉर्मल। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि मैक्सिमम जो होता है वो नॉर्मोसाइट रहता है, बट इफ द पर्सन इज हैविंग दिस शिफ्ट ऑफ दिस प्राइस जोन्स कर्व्स टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट मीन्स ही इज हैविंग मोर मैक्रोसाइटिक सेल्स, यानी उसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस हैं। एंड इफ इट इज द कर्व इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स हैविंग द मोर न्यूमरस सेल्स ऑफ माइक्रोसाइटिक सेल्स, ठीक है। माइक्रोसाइटिक सेल्स कब होती हैं? जब पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सो हमें थोड़ा सा इसमें पता लग जाता है। देन आरबीसी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में थोड़ा सा बात करना जरूरी है, क्योंकि आरबीसी मेम्ब्रेन दैट इज नॉर्मल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेड सेल्स, अकाउंट्स फॉर सेल्स एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे जो प्रोटीन्स रहते हैं, दोज प्रोटीन्स आर हैविंग रिसेप्टर्स, हैविंग एंटीजेंस, दैट इसीलिए बोलते हैं ना आरबीसी एंटीजन जो काम होता है वो सरफेस पे रहता है। मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड नॉर्मल डिस्क्वाइड शेप ऑफ सेल। इसका इतना अच्छा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स फिट होते हैं, ऑल द प्रोटीन्स विद द लिपिड्स ऑब्वियसली, तो जो प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है वो इतना अच्छे से होता है कि इसको बाइकॉनकेव शेप देता है और इसको डिस्क्वाइड शेप देता है, डिस्क शेप जो होता है इसको बोलते हैं, वो देता है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द फंक्शंस ऑफ आरबीसी। प्रिजर्व सेल डिफॉर्मेबिलिटी, सेल आसानी से मतलब डिफॉर्म होकर कहीं से भी पास हो जाती है। रिटेन सेलेक्टिव परमेबिलिटी, सेल को इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सचेंज करना है एंड वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ग्लूकोज लेना है तो कैसे लेना है, तो उसके लिए सेलेक्टिव वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल्स लगे हुए हैं। सो दोज आर हैपनिंग इन द फंक्शन ऑफ दिस आरबीसी मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल लिपिड bilayer supported by a mesh-like protein cytoskeleton. Proteins and phospholipids are organized asymmetrically. Biochemical composition include 52% of protein, 40% lipids and 8% carbohydrate. RBC membrane में ये सब इसमें इसके composition है। membrane protein की बात करें तो we can see there are some integral proteins and some the peripheral proteins, you can say. Integral proteins embedded in membrane via hydrophobic interaction with lipids. Phospholipid जो bilayer बनता है उसमें अगर देखें इंटीग्रल प्रोटीन्स अंदर वाला, सो दे आर फिटेड। एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब जो पेरीफेरी पे रहता है, लोकेटेड ऑन साइटोप्लाज्मिक सर्फेसेज ऑफ लिपिड बाइलेयर, कंस्टिट्यूट मेम्ब्रेन स्केलेटन, anchored via integral proteins, responsible for membrane elasticity and stability. जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो चारों तरफ फैले रहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स में comprises peripheral cytoskeleton which supports membrane. All cells are thought to have a similar structure under the plasma membrane.
इसमें से जो वर्थ नेमिंग है जो प्रोटीन्स हैं, दैट इज स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन, बैंड 4, बैंड 1 एंड एक्टिन। जो प्रोटीन्स हैं दोज आर वर्थ नेमिंग इन दिस आरबीसी मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एंकायरिन और स्पेक्ट्रिन है स्पेशली, दिस इज गिविंग द बाइकॉनकेव शेप टू द सेल। एंड देन वी कैन गो फॉर इंटरेस्टिंग प्रोटीन्स। इसमें मल्टीपास, दैट इज बैंड 3, एंड दिस इज फॉर anion exchanger, catalyzes reversible exchange of the anions bicarbonate chloride between RBC and plasma. Exchange allows maximum transport of carbon dioxide in blood as bicarbonate in solution. ठीक है, सो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये वाले हैं ये इस तरह का काम करते हैं। देन बेसिक पॉइंट, बाइकार्ब्स इज मच मोर soluble in plasma than carbon dioxide. So lots of bicarbonates HCO3 but not much carbon dioxide, ध्यान रखिएगा, can be carried in the blood. So bicarbonate can be easily carried in the blood, so it will be made as a bicarbonate HCO3, so can be carried in the blood. Therefore need to convert CO2 to bicarbonates when want to carry carbon dioxide in the blood. Need to be reversed to eliminate the carbon dioxide in lungs. तो वही बाइकार्बोनेट जब लंग्स में पहुंचता है तो वहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करके HCO3 को CO2 और H2O निकाल के वो CO2 बाहर निकाल दी जाती है। Conversion of CO2 to bicarbonates and vice versa can only occur inside RBC, where the enzyme carbonic anhydrase is present. Carbonic anhydrase, that is Ca, will can convert CO2 plus H2 into HCO3 plus हाइड्रोजन आयंस यहाँ बन रहे हैं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी बन रहे हैं जो एसिडिक नेचर क्रिएट करते हैं। This is the reversible reaction, you can say. Whenever bicarbonate used to be converted into carbon dioxide, जब लंग्स में पहुंचेगा तो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। When the carbon dioxide has been converted into bicarbonate, तो वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्राइज के कारण तो CO2 plus H2O, you can see HCO3 plus H plus हो जाता है ना। आरबीसी मेम्ब्रेन में और क्या सीख सकते हैं, गैसेस पास थ्रू मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन, ये भी इसकी खासियत है। अगर नहीं होता तो कैसे हो पाता हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो CO2 कैन एग्जिट और एंटर आरबीसी एज नीडेड, हाउएवर बाइकार्बोनेट कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन्स, you need the anion exchangers to get bicarbonate in and out of the RBCs का। CO2 को बोल सकते हैं कि दिस इज द लिपिड सॉल्युबल, तो इजीली पास हो जाती है, बट बाइकार्बोनेट नॉट इजीली, तो इसके लिए वहाँ पे हमें एक्सचेंजर चाहिए होता है। वेयर CO2 इज हाई एज इन टिश्यूज, CO2 diffuses into RBCs and is converted to bicarbonates inside the RBCs. Reaction above goes to the right. Then bicarbonate leaves RBCs in exchange for chloride using the anion exchanger. तो वो क्लोराइड ले लेती है और बाइकार्बोनेट तब छोड़ देती है। इन लंग्स द प्रोसेस इज रिवर्स। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में हमको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट को एक्सचेंज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। सिंगल पास ग्लाइकोफोरेंस, पहले था वो the function of protein not known, but large amount of charge modified carbohydrates, sialic acid may cause RBC to repel each other and prevent clumping of RBCs. So those are the proteins present on the surface of the RBCs. Loss of terminal sugars may occur when the age and triggers destruction of old RBCs. Glycophorins makes up an gene family. Variations in glycophorins A are responsible for MN blood types. जो हमने बताया ना कि एंटीजेंस सरफेस पे रहते हैं, उसके उसी की बात कर रहे हैं। अगर MN ब्लड टाइप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सरफेस में ये वाला बनाता है। वेरिएशंस इन ग्लाइकोफोरिन C आर को रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ मलेरिया। ये बहुत वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जहाँ पे मैंने बात किया था स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन का। स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द बाइकॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसीज। स्पेक्ट्रिन वेरी फ्लेक्सिबल रॉड लाइक मॉलिक्यूल, 100 नैनोमीटर लेंथ है, रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइकॉनकेव शेप द ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, तो बहुत सारे जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो वहाँ पे फिक्स रहते हैं और उसको शेप को बनाए रखते हैं, क्योंकि कहीं भी वेसल्स में जाती है आरबीसी तो उसकी शेप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाइकॉनकेव शेप नहीं है, इफ इट इज़ सम अदर शेप अपार्ट फ्रॉम द बाइकॉनकेव, तो व्हाट विल हैपन, द RE cell will detect the abnormal RBCs and they will kill those RBCs who are not in the normal शेप और साइज। यहाँ पे ये उनकी हिमोलिसिस हो जाती है और फिर पर्सन को एनीमिया हो सकता है। इसीलिए एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल विल कॉज द एनीमिया। दिस इज वी कैन से द हिमोलिसिस हो जाती है। अदर प्रोटीन्स आर एक्टिन,
प्रोटीन 4, प्रोटीन 1, पैलिडिन, बैंड 4, एंकायरिन, एड्यूसिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमोड्यूलिन, इतने सारे प्रोटीन्स होते हैं, जानते भी नहीं हम लोग, उतना जरूरत भी नहीं होता है, बट रिमेंबर दिस थिंग, एक्टिन, एक्सपेक्ट्रिन एंड एंकायरिन, ठीक है। सो ये दिस इज़ द नॉर्मल, एक मैंने पिक्चर लिया था कहीं से, उसमें देखिए ये वाला शो हो रहा है कि दिस इज़ द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, यू कैन सी वर्टिकल इंट्रैक्शन एंड हॉरिजॉन्टल इंट्रैक्शंस, इसमें स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फाडाइटाइलोकोलिन एंड फॉस्फेटिडाइली, पता नहीं क्या नाम, इतना लंबा नाम होता है, एंड फॉस्फेटिडाइलसिन, ठीक है। And you can see the glycophorin C, band 3 proteins, membrane phospholipids are there. Phospholipids are making the this hydrophobic, and this lipids is so both you can see with the lipids are they are fitted in the membrane. Actin यहाँ पे दिख रहा है, spectrin, tropomyosin, C spectrin. So this is the diagrammatic representation of the RBC's cell membrane. ये भी है जहाँ पे बैंड 3 प्रोटीन्स दिख रहे हैं, एंकायरिन दिख रहा है, इतना सब कुछ होता है आरबीसी में। सोचिए हम लोग सोचते हैं बस छोटा सा सेल है, बहुत सारा जो चैनल्स प्रोटीन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, बिकॉज ग्लूकोज को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सब निकालना है, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना है अंदर। सो दीज आर द हेल्पिंग प्रोटीन्स ऑल्सो, उस एक शेप को भी मेंटेन कर रहे हैं, प्लस फंक्शंस में भी हेल्प करते हैं। आरबीसी मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा जानना जरूरी है, बहुत सारा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानते रहेंगे तो हमें क्या होगा, कुछ कुछ डिजीज में जब याद आता है कि यार अच्छा ये इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो दैट वी शुड नो। आई विल नॉट गो टू मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ दिस, बिकॉज इसके लिए हमें पूरा बायोकेमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर है, पूरा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें नहीं जाके हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा। मेंटेन शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेन आयरन इन Fe फॉर्म, Fe2+ मतलब फेरस हो गया फॉर्म, प्रिजर्व द मिलियो ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसी मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको अपना शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना है, ठीक है। और आयरन को Fe फॉर्म में ही वो लेती है, ठीक है। आयरन को जब हीमोग्लोबिन बनाना है उसको, तो Fe फॉर्म में लेके बनाती है, फेरिक मिलेगा लेकिन फेरस में कन्वर्ट करने के बाद ही वो यूज़ करती है और बनाती है। प्रिजर्व द मिलियो ऑफ आरबीसी, मतलब जो आरबीसी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखना है। हाई पोटेशियम है, लो सोडियम एंड कैल्शियम, तो दिस इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सचेंज आर देयर, सो दैट शुड बी मेंटेन। सो बिकॉज ऑफ दैट पर्पस ओनली आरबीसी नीड्स सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दस मस्ट हैव कांस्टेंट एक्सेस टू ग्लूकोज, यानी अब इस सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए एटीपी, और एटीपी कहाँ से मिलता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के बाद। तो ग्लूकोज एंटर्स द सेल द आरबीसीज वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वहाँ पे। द आरबीसीज is highly dependent upon glucose as its energy source. Energy in the form of ATP is obtained only from the glycolytic breakdown of glucose with the production of lactate. lactate बन रहा है क्योंकि यहाँ पे anaerobic glycolysis हुआ है, ठीक है। Glucose is transported through RBC membrane by facilitated diffusion through glucose transporters GLUT1. Glucose transporters GLUT1, GLUT2 हम लोग पढ़ेंगे when we will discuss about this glycolysis in detail. और जब हम लोग डायबिटीज़ वाला पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT1 है यहाँ पे, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवेज मेनली एनारोबिक, आरबीसी हैव टू डिलीवर नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज मेनली एनारोबिक। आरबीसीज कंटेन नो माइटोकॉन्ड्रिया, सो देयर इज नो रेस्पिरेटरी चेन, नो साइट्रिक एसिड साइकिल एंड नो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज, याद रखिएगा। सो दिस इज हैविंग सम लेस इफिशिएंट पाथवेज, उसमें से कौन से बचे? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, इसको बोलते हैं EMP, 95% उसी से काम चलता है, इसको बोलते हैं एम्डेन-मेयरहोफ पाथवेज, ठीक है। एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे इज अ काइंड ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का डिस्ट्रक्शन इज द विदाउट ऑक्सीजन। एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज एंड HMP शंट होता है, और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे रहता है। विद द हेल्प ऑफ दीज पाथवेज ओनली glucose is utilized and the ATPs are produced in the RBCs. Glycolysis, importance of glycolysis in red cells, energy production. It is the only pathway that supplies the red cells with ATP. Reduction of methemoglobin. हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जब ऑक्सीडाइज होता है तो मेट हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे आगे चल के। ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड्स NADH
फॉर रिडक्शन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन बाई NADH, साइटोक्रोम बी रिडक्टेज। साइटोक्रोम बी रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका भी काम आएगा अभी। इन रेड सेल्स 2,3 डाईफॉस्फोग्लाइग्लिसरेट, 2,3-DPG बोलते हैं, यहाँ पे बाई भी है तो बाईफॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं उसको, बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन डिक्रीजिंग इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज। तो 2,3-DPG का जो कोर्स है, 2,3-DPG की वजह से ही ऑक्सीजन को छोड़ सकती है, ठीक है। जितना 2,3-DPG रहेगा उतना ऑक्सीजन की जो एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो जाती है और वो इजीली वहाँ पे छोड़ सकता है। सपोज अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करके सेल को दे ही ना, तो ठीक है, जब सेल को नहीं देगा तो सेल को कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। सो दिस इज फॉर दैट पर्पज ओनली, दीज थिंग्स आर वेरी मच नीडेड। 2,3-DPG हो गया, देर आर सो मैनी फैक्टर्स डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहाँ पे pH है, टेम्परेचर है, 2,3-DPG है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस इज हेल्पिंग इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन गिविंग टू द टिश्यूज। Utilization of ATP. ATP utilization is how it is going on, phosphorylation of sugars and proteins. एक तो ये हो गया कि वॉट एवर ATP has been produced उसका यूज कैसे कर रही है और क्या बना रही है, तो वन हो गया phosphorylation of sugars and proteins. Then ATPase driven ion pumps, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज करना है, सो कैल्शियम को लेना है, पोटेशियम को रखना है अंदर, सोडियम को बाहर निकालना है, सो ऑल दीज आयन पंप्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही है ATP। and maintenance of membrane asymmetry, then maintenance of red cell shape and deformability using ATP dependent cytoskeleton। जो cytoskeleton जो अभी तक आपने बात किया, प्रोटीन जो भी हैं, तो this is making the biconcave shape and maintaining this skeleton comfortable। anaerobic glycolysis EMP pathway, इसमें ये ग्लूकोज कैसे कैसे इसको अल्टीमेटली हमें लैक्टेट मिला, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट HMP शंट। HMP शंट में सेम आपको दिखेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस दिखा दिया है कि NADP एंड NADPH2 जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वहाँ पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, आई विल टेल यू। देन अब बात करते हैं जो मैं अभी तक बोल रहा था, द EM पाथवे, द एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे ऑल्सो प्रोवाइड्स द NADH प्लस H+ रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ Fe3 to Fe2, क्योंकि Fe जो फेरिक फॉर्म है, फेरिक फॉर्म में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, तो RBC हैज़ टू कन्वर्ट द फेरिक फॉर्म इनटू फेरस फॉर्म, इन दैट वे ओनली दिस इज हेल्पिंग। क्या होता है, दिस यू कैन सी मेट हीमोग्लोबिन Fe3 प्लस with the help of NADH and H+ and met hemoglobin reductase, then hemoglobin Fe2 plus, तो यहाँ पे ये फेरस बना, ठीक है। सो दिस इज द, ये रिवर्सिबल रहता है, जब हीमोग्लोबिन Fe2 जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बना देगा मेट हीमोग्लोबिन। सो दिस कंटिन्यूस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, इन दैट कंटिन्यूस प्रोसेस सुपर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, यू कैन सी इन दिस बिलो लाइन। फिर से दिखाता हूँ, हीमोग्लोबिन जो Fe2 ऑक्सीडेशन हुआ, मेट हीमोग्लोबिन बना, मेट हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता रहता है, वहाँ पे ये चलता रहता है आरबीसी में, मेट हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, मेट हीमोग्लोबिन बनेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑलवेज गोइंग ऑन। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बन रहा है, तो दैट सुपर ऑक्साइड एवरीबडी नोज कि ये वेरी वेरी डेंजरस थिंग। सुपर ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देगा, टिश्यूज को डैमेज करेगा, हीमोग्लोबिन डैमेज करेगा, आरबीसी डैमेज करेगा, अल्टीमेटली हीमोलिसिस हो जाएगा सेल का, है ना। तो ये जो भी सुपर ऑक्साइड बनते हैं या हाईली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। इसके लिए भी आरबीसी में मेटाबॉलिक हेल्प चेन है, वो दिखाना है बस खाली, हमको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा समझने के लिए देखिए। अब जो सुपर ऑक्साइड जो बना था उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, ठीक है। जो सुपर ऑक्साइड बना उसको डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा जो मैं बता रहा हूँ NADPH एंड उसका जो पाथवे है यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए, सुपर ऑक्साइड प्लस 2H सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज, उसको कन्वर्ट कर दिया H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज लेस डेंजरस देन द सुपर ऑक्साइड। अब उस लेस डेंजरस, ये भी डेंजरस है, लेकिन H2O2 को भी कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। तो यहाँ पे जो ग्लूटाथियोन होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड
एंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता रहता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जितना भी H2O2 बन रहा होता है उसको हम लोग पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज नो हार्म। ठीक है, तो उसमें हेल्प कर रहा है यहाँ पे हमारा NADPH प्लस H प्लस, जो हमारा EM पाथवे से मिल रहा है, जो हमारा एम्डेन मेयरहोफ पाथवे था आरबीसी के अंदर। सोचिए आरबीसी में कितना मैनेजमेंट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी चल रही है, आयरन ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, बट जो सुपर ऑक्साइड बन रहा है दैट कैन डैमेज द आरबीसी हिमोलिसिस हो सकता है, उसको बचाने के लिए भी वहाँ पे छोटा सा यहाँ पे EM पाथवे से क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, NADPH प्लस H प्लस। तो NADPH प्लस H प्लस जो होता है वो क्या करता है, वो बिकॉज ऑफ दैट जो ग्लूटाथियोन है वो बार बार रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली H2O2 विल बी कन्वर्टेड इनटू H2O एंड इन दिस वे दिस सुपर ऑक्साइड इज डिस्पोज्ड ऑफ। आरबीसी की जान बचा ली जाती है उसके अपने द्वारा। इन केस ऑफ G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, जो G6PD जो एंजाइम है डेफिशिएंसी, द NADPH प्लस H प्लस प्रोडक्शन डिक्रीजेज। यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि क्यों मैंने इतना बताया अभी तक, जो देख रहे हैं ना आप EM पाथवे से जो NADPH प्लस H मिल रहा था हमको, तो NADPH प्लस H मिलने के पीछे क्या है, G6PD जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम है उसका फंक्शन था। अगर किसी पर्सन में G6PD डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होगा, G6PD डिफिशियंसी हो जाएगी तो NADPH प्लस H प्लस नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो जो सुपर ऑक्साइड बना था वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वहां पर रह जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली कॉज डैमेज टू द आरबीसीज। So, in case of G6PD deficiency, the NADPH plus H plus production decreases, resulting in accumulation of oxidants and damage of hemoglobin as well as of membrane. The cell, this leads to the hemolysis. Hemolysis, lysis means breakdown, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है, आरबीसी एक तरह से मर जाती है। बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। तो G6PD डिफिशियंसी हम लोग याद रखेंगे। दिस इज एटिक प्रोडक्शन इन एनारोबिक ग्लाइकोसिस, ये हम लोग आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा और मुझे भी याद नहीं रहता है एक्चुअली, सही बात है। आई हैव टेकन दिस इज जस्ट फॉर डिफरेंस। जो NADPH सिंथेसिस है यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे जो NADPH एंड NADPH2 बन रहा है वो हम लोग को अब समझ में आएगा कि वाई वी हैव डिस्कस दिस मच, बिकॉज जो एनारोबिक एक्टिविटीज चल रही हैं वो समझ में आया हम लोग को, प्लस हमें समझ में आया कि कौन कौन सा पाथवे चलता है आरबीसी के अंदर, और ये समझ में आया कि अगर उसमें सुपर ऑक्साइड बन रहा है तो उसको भी कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो दिस इज इतना सब आरबीसी में चल रहा है। छोटी सी आरबीसी बेचारी बिना न्यूक्लियस बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी अपनी जान बचा के रखी हुई है 120 दिन तक। मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज पाथवेज, जो हीमोग्लोबिन से मेट हीमोग्लोबिन बना था उसी का यहाँ, बिकॉज मेंटेन्स आयरन इन रिड्यूस स्टेट ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, protects HS group of hemoglobin and membrane proteins from oxidation. This is because of this is helping, and this is met hemoglobin reduction जो हमने पहले उसमें देखा था। So this is because of this, hemoglobin से met hemoglobin बना, met hemoglobin से वापस hemoglobin बना, तो this is continuous process is going on, and in that RBC is converting the ferric form to ferrous form. Fe3 को यूटिलाइज नहीं कर सकती है तो Fe3 को Fe2 प्लस में ही लेके यूटिलाइज करती है, तो दिस इज द नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड 2,3-DPG जनरेशन। कहाँ पे हुआ देख सकते हैं हम लोग, 2,3-DPG, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 2,3-DPG यहाँ पे जनरेशन हो रहा है एंड दैट इज हेल्पिंग इन द in this process, and RBC is taking this एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो आरबीसी जो है ग्लूकोज को कैसे इसने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस किया और लैक्टेट बना। 2 ATP यहाँ पे दिखा रहे हैं एंड 6 GP एंड 6 FP, कार्बन डाइऑक्साइड, राइबोज एंड फॉस्फेट, बिकॉज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज में हमें क्या मिला, CO2, राइबोज एंड फॉस्फेट। एंड इन एनारोबिक ग्लाइकोसिस में दिस इज हैविंग 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-DPG प्रेजेंटेशन है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन आरबीसी, जो इतना सब मेटाबॉलिज्म हुआ तो उसमें बना क्या क्या, हमें क्या क्या मिला उसमें आरबीसी में, NABH, सॉरी NABH क्यों बोल रहा हूँ मैं, NADH, ATP, 2,3-DPG, NADPH, दैट इज मेजर रिड्यूसिंग एजेंट इन द आरबीसीज, बिकॉज बहुत हेल्प किया। अभी आपने देखा था कैसे सुपर ऑक्साइड को इसने मेंटेन किया था। एंड कन्वर्जन ऑफ हेक्सोजेस टू पेंटोजेस,
हेक्सोज शुगर को पेंटोज शुगर में कन्वर्ट करके उसने यूज़ किया। एंड देन एक बात और देखते हैं कि ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आता है एरोसाइट मेम्ब्रेन फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी मतलब फ्रेजाइल आरबीसीज, है ना। तो वेन एवर दे आर आरबीसीज आर हीमोलाइज्ड, दैट मीन्स दे आर मोर फ्रेजाइल, आरबीसीज फट जाती है। तो हमने बात किया था, इसको मैं इधर किसका देता हूँ, ब्रोकन बाई सर्टेन फिजिकल स्टिमुलाई। मैकेनिकल फ्रेजिलिटी आरबीसीज, मैकेनिकल, अगर आरबीसी शेकन विद ग्लास बीड्स into 1 hour, 2 to 5% lysis is done. And auto hemolysis में blood kept at 37 degree centigrade for 24 hours, तो less than 0.5% of hemolysis is there. Osmotic fragility यानी RBCs in physiological saline remain intact for hours, लेकिन अगर saline जो NaCl का जो solution है if it is 0.9% तो RBC बहुत देर तक रहती हैं, लेकिन अगर वही चीज़ 0.3%, 0.5%, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता जा रहा है, in that solution may RBC will be hemolyzed. See, you can see in this figure, if cells are placed in distilled water, RBC ऊपर दिख रही हैं, तो if cells are placed in distilled water मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, RBCs cells swells and burst, क्योंकि उसमें पानी अंदर घुस जाता है, पानी अंदर घुसेगा, बाहर हाइपोटोनिक है तो सॉल्यूशन ज़्यादा है, अंदर आरबीसी कंसनट्रेटेड है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो अंदर घुसता है आरबीसी के, एंड आरबीसी बिकम स्वेल्ड अप, फूल जाती हैं, एंड आरबीसी विल बी हीमोलाइज्ड। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, सेल्स प्लेज इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जो हाइपरटोनिक होता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बिकॉज द आउटसाइड इज हाइपरटोनिक, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है, वो जो पानी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो निकल जाता है, तो आरबीसी वो श्रिंक कर जाती हैं, कर जाती हैं, तो आरबीसी डैमेज हो जाती हैं। तो इन बोथ वेज इट विल बी डैमेज्ड इफ इट इज केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों ही कंडीशन में डैमेज होता है। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द आरबीसीज। तो ये भी हमारा काम जो ब्लड अपने आप करता रहता है। ये हो गया सिकलिंग इन द आरबीसीज, एक नॉर्मल शेप मैंने थोड़ा सा ले लिया था बिकॉज आरबीसी नॉर्मल आरबीसी दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है सिकल शेप आरबीसीज। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा सिकल शेप क्यों हो जाता है। और क्या देखते हैं मॉर्फोलॉजी में, ए नॉर्मल आरबीसी कॉल्ड ए नॉर्मोसाइट एंड इट्स एवरेज वॉल्यूम इज अबाउट 87 क्यूबिक माइक्रोन। नॉर्मल रेंज क्या होता है, 80 to 94। व्हेन इट इज मोर देन 94 क्यूबिक माइक्रोन, द कंडीशन इज कॉल्ड द मैक्रोसाइटोसिस, यानी सेल का साइज बड़ा हो गया है। दिस इज सीन इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वहाँ पे सेल साइज बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब इन द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन डिवीजन वगैरह नहीं हो पाता है, डीएनए मटेरियल का डिवीजन सही से नहीं हो पाता है, तो सेल जो होती है वो सेपरेट नहीं हो पाती है, वो बड़ी सेल हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट सेल इज अगेन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉजेज बिकॉज ऑफ द लार्ज सेल साइज, RBCs are trapped and RBC are hemolyzed. That's why it is causing anemia. इसलिए यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक के साथ एनीमिया जुड़ जाता है ना। और क्या हुआ, when the size is less than 80 cubic micron, then the condition is called microcytosis. Micro means छोटा, cytosis means cell. As in iron deficiency anemia, जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे बिकॉज ऑफ आयरन नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो RBC उतना अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएगी और उतना नॉर्मल शेप एंड साइज एक्वायर नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई दिस इज रिमेन माइक्रोसाइटोटिक। एनाइसोसाइटोसिस इज सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें कि डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स आर सीन। एंड एक होता है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस में क्या होता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ द आरबीसीज आर सीन, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर लिया हुआ है, दिस इज नॉर्मोसाइट, मैक्रोसाइटोटिक एंड एनाइसोसाइटोसिस, ठीक है। Instead of being biconcave, if they are spherical, then the condition is called spherocytosis. Spherocytosis. Hemolysis will be there because they cannot withstand osmotic changes. अभी हमने बात किया था because biconcave shape था, इसलिए वहाँ पे osmotic change को somehow it can cope up, ठीक है। इट कैन विदस्टैंड सम अमाउंट ऑफ, ऐसा नहीं कि भैया बाइकॉनकेव बन गई है तो कितना भी ऑस्मोटिक चेंज कर दो जिंदा रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है। कंपेयर था वहाँ पे कि अगर स्फेरिकल सेल है और बाइकॉनकेव सेल है तो दोनों में
ये डिफरेंस रहता है कि स्फेरिकल सेल बिल्कुल नहीं बच पाएगी, बाइकॉनकेव सेल थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएगी। दैट वाज द डिफरेंस। एक और बात आती है रोलेक्स फॉर्मेशन, रूलो फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। रूलो फॉर्मेशन में क्या होता है, ये हम लोगों ने बात किया था शायद प्लाज्मा प्रोटीन के समय भी, लेकिन हाँ बताते रहे कि आरबीसीज का एक प्रॉपर्टी है, दे विल व्हेन एवर दे विल पाइल अप लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स, जुड़ जाती है आपस में, एक पाइल ऑफ कॉइन्स बनाती हैं, रूलो फॉर्मेशन करती हैं। इसमें देख सकते हैं हम लोग इस फिगर में भी, जो आरबीसी एक साथ चिपकी चिपकी दिख रही है इन द माइक्रोस्कोपिक, यू कैन सी दिस इज द रूलो फॉर्मेशन, दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसीज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंड देन एंड उसमें भी हमने देखा था कि दो जो फिब्रिनोजिन था वो क्या करता है, और ग्लोबुलिन वो क्या करता है, आरबीसी की जो सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको ख़त्म कर देता है। एंड देन नेगेटिव चार्ज जब खत्म हो जाएगा तो दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। पहले क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, बट नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो इजीली एक दूसरे के ऊपर वो पाइल अप हो जाती हैं और पाइल अप कॉइन्स बना देती हैं, एंड रूलो फॉर्मेशन विल बी मोर इजी। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ईएसआर। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं कि दिस इज फुल प्रैक्टिकल क्लास, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द क्योंकि इरेथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल बहुत लंबा लिखा हुआ है, मैं अब समझा देता हूँ कि क्या होता है कि इरेथ्रोसाइट वंस एडेड विद द सम एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, अगर उसको ब्लड को मिला के हम लोग किसी एक ग्लास ट्यूब में रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं, तो क्या होता है कि वर्टिकली रखने में क्या होगा कि वो आरबीसी जो है एक दूसरे के ऊपर रोलेक्स फॉर्मेशन करती हैं, रूलो फॉर्मेशन करने के बाद वो सेटल अप होती जाती है। तो बिकॉज जो उसका जो हैवी होती जाती हैं और हैवी होने के बाद वो बैठती जाती हैं, तो एक जो ब्लड का कॉलम होता है उसमें आरबीसी जब बैठती जाएंगी तो क्या होगा, नीचे कंडेंस होती जाएंगी और ऊपर का जो प्लाज्मा है वो क्लियर होता जाएगा, है ना। तो जिसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स आर सेडिमेंटिंग डाउन, ठीक है। तो एट द रेट they are sedimenting down, this is known as erythrocyte sedimentation rate. इसमें there are two processes are there we are using in the lab. One is Westergin method and one is Winthrop method. Westergin का मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट आर रीडिंग प्लस सेकेंड आर रीडिंग डिवाइडेड बाई 2 एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 2. दिस इज गिविंग द एवरेज रीडिंग ऑफ mm/h. नॉर्मल वैल्यूज मेल में 4 mm/h एंड फीमेल में 8 mm/h. हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे कि विंट्रोप्स ट्यूब कैसी होती है और वेस्टरगिन ट्यूब कैसी होती है, विंट्रोप्स ट्यूब में क्या खासियत है, वेस्टरगिन में क्या खासियत है. दिस विल डिस्कस लेटर इन द whenever we'll discuss the ESR chapter in detail, and this is the variations are also there. जनरल डिजीज कंडीशन में ESR may be varied like tuberculosis, collagen disease like rheumatoid arthritis, malignancy etc. फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी दिस ESR में भी इंक्रीज्ड. फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती हैं, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मील. प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मील. ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ESR कम होता है, ठीक है. और क्या होगा, प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो कुछ सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी ESR थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है एंड देन डिक्रीज्ड हो जाता है. इन दैट केसेस बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. सिग्निफिकेंस इसका क्या है, वाई वी आर टेकिंग दिस ESR. इन ऑर्गेनिक डिजीज राइज ऑफ ESR इज कॉमन बट इट कैन नॉट डायग्नोसिस, ठीक है. ESR नेवर चेंजेस इन फंक्शनल डिजीज लाइक हिस्टीरिया. फंक्शनल डिजीज में चेंज नहीं होता है एंड इवन इन स्मॉल इन्फेक्शन ESR इज इंक्रीज्ड. तो ये हमें एक बताता है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक नहीं है. ESR बढ़ गया तो पता नहीं लगता कौन सी डिजीज हुई है, बट ESR बढ़ा है तो मतलब पक्का कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है जो ESR बढ़ गया है. एंड इट्स हेल्प्स इन द प्रोग्नोसिस बिकॉज आफ्टर गिविंग द मेडिसिन इफ ESR इज कमिंग टू नॉर्मल साइड देन द मेडिसिन इज वर्किंग. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोर टुवर्ड्स द प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, है ना. इसको बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है. So do you have any questions? So you can write in the comment box and you can directly WhatsApp to me. Next session we will take the hemoglobin. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने आरबीसी पढ़ लिया कि आरबीसी का हमने फंक्शन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ पढ़ लिया और उसका सेल के बारे में पढ़ लिया. एंड देन नेक्स्ट वी विल टेक अप द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का टाइप्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सब हम लोग देखेंगे. टिल देन stay safe, stay healthy and thank you. बात करते हैं आज का हम लोग.